जी दोबारा जन्म होने तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लगता कि मैं कौन हाँ, जिसमें खुद एक खुद है, एक खुदी है, एक खुदा है। खुद का मतलब होता है असली आपा। खुदी होंदी कि नकली आपा जदों ड्रामिਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, सारी उम्र ड्रामिਆਂ ਵਿੱਚ खुदी ईगो। अपना जो नकली आपा है, मन वाला आपा, वो सारी उम्र कभी धी दा या पुत दा उत्ते कोई फर्क नहीं, कभी धी दा रिश्ता निभाउंदा, कभी भैन दा रिश्ता निभाउंदा, किते मां बनदा, किते दादी बनदा, किते पोतरी बनदा, किते घरवाली बनदा, किते नानी बनदा, किते पड़नानी बनदा, किते कुछ बनदा, किते किते कुछ बनदा। बनदा नहीं है, सिर्फ ड्रामा हो रहा है। तो वही चीज एक ही, हाँ जी, एक ही आप। हाँ, वो सारी उम्र ड्रामे बाजी विच एक ही टेबल थे, लड़का बैठा हुआ एक ही टेबल थे, मां बैठी हुई उथे, लड़के नाल गल करनी ते ट्यून होर होनी, मां नाल गल करनी होर होनी। वो देखना जी यदि कितनी नकली लाइफ है, कितनी नकली लाइफ जिहदे विच कुछ भी किते भी कदी भी कुछ असलियत नहीं है। तो खुद नूं इसनूं पता नहीं मैं कौन हाँ। दुनिया दसदी तू इहदी धी है, तू इन्हां दी भैन है, बस वो सुन के और सारी उम्र इत्थे खचित हो जाती। चलत जिन्हों महाराज जी कहते, चलत या चरित्र, चरित्र ड्रामे, बुआ चाची ताई किन्ना कुछ, और किसी दुनिया में किसी में इस चीज बारे कभी ख्याल नहीं आता कि असल में कहानी की है। और जिहड़ा प्राणी सारी उम्र खेड खेडदा रहिंदा, उन्होंने कभी रब का ख्याल नहीं आ सकता। रब का ख्याल सच की, सच्चाई की है, तू कौन है, आ सब कुछ की है, वो गुरु आके दसता है। किन्ने किन्ने लोग पढ़ाइयां कर लेंदे, किन्ने किन्ने, और पढ़ाई की है, उस किताबों चो पढ़ के कुछ याद कर लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया, बस, और तो पता तो कुछ भी नहीं लगा। और जिन्ना चिर अपना दूसरा जन्म नहीं होता, सतगुर के जन्म में गगन मिटाया, अनहत राते ए मन लाया। उन्ना चिर आप शांत नहीं हो सकते, और जिंदगी अशांति विच बता देनी कोई सियानप नहीं। दो चीज़ां दोबारा जन्म विच चाहिदियां हन, एक वापस घर होना ते दूसरा घर आके आराम करना। दोवें चीज़ां ही असल विच किन्ने कमाल दियां हन। हर कोई चाहूगा मैं अपना घर वेखा, मेरा घर है किते, बाहर ते किते घर नहीं। आप हर कोई चाहते मैं शांत हूं। तो जी ये ख्याल आवे कि अजे बहुत टाइम है, रब करे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵਰੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਆਪੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਇਨ ਦ ਮੇਨ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋ। ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਿਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਖਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ, ਔਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਹਨ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ। ਨਾਨਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਪੁੱਛੋ ਗੁਗਿਆਨੀ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਲਾਈਨ ਆ ਦਿੱਤੀ, no one has ever achieved that state of rebirth and no one shall ever achieve। ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਬਸ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, lust and anger, lust is that where we constantly keep on having the lustful thoughts, and anger, ਕ੍ਰੋਧ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਨਾਭੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। Please remain focused at the navel point। ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਊ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੋਊ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਕਦੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ। ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ। ਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ
वो जिहड़ी जख्मी हुई हुई सुरती सी वो मुड़ के फिर ताजा जख्म भर जाते। जख्म भर के तो पहले नालों भी किते ज्यादा सोहनी हो जाती है सुरती। कहते नाल जी गाउन नाल, गाउन की अहमियत समझना जी। गाउन नाल ये कोई वो जी स्टेटमेंट शुरू थी गावीए सुनिए मन रखिए भाव उथे सी कि जे तू गावेगा नाल सुनेगा जिहड़ी सुरती तेरी जख्मी हुई सी वो प्यारा वाली बन जा। गावीए सुनिए मन रखिए भाव। इसलिए कहते काम ते क्रोध जदों दो चीज़ां अपने अंदर नूं कड़ा के रख दियां, अंदर नूं रिलैक्स नहीं होंदे। नाभि ते ध्यान रखना जी ते आपां रिलैक्स होना। शेखा अंदरों जोर छड्ड तू, शेखा नाभि ते आके जी ते उत्थे महाराज जी आउणगे, नाभि दे चार चफेरे पर आपां नाभि ते रहना, आपां नाभि ते टिके रहना, उन्होंने अपने चार चफेरे उन्होंने हाजरी महसूस करनी। दिस इज डिफरेंट। ये वक्री चीज है जी। पहला नालों पहला आपां महाराज जी दे नाल पिछे जाते सा। दिस इज डिफरेंट। इसनूं समझना ये रीबर्थ, ये दोबारा जन्म लई सिमरन बदल जाता है। वो जो उन्होंने नाल ना रहना सी उन्होंने मुलाकात करनी सी हुण उन्होंने नाल रहन लग पे। सो प्लीज स्टे। शेखा अंदरों जोर छड्ड तू, बिकम रिलैक्स्ड। पौ कर चल गवाए। महाराज जी कहते दो चीज़ां इहो जिहियां हन बंदे नूं पागल कर दिंदियां, काम एंड क्रोध। दोवें चीज़ां जदों कोई भी इन्हां चों जदों अटैक करदी है ते पागल हो। अपनी जिहड़ी थिंकिंग अपना प्रोसैस है उसनूं बंद कर दिंदी। कोई सियाणप काम नहीं आउंदी क्योंकि सियाणप नूं अंदर बंद कर दिंदी। पौ कर चल गवाए। कहंदे परमात्मा दे पौ विच रहो फिर तू सुरत विच रवेगा। हाउ ब्यूटीफुल। परमात्मा दे डर विच रहो फिर तू सुरत विच रहे। पौ कर चल गवाए, पौ कर चल गवाए।